Hi, I am Unknown. Today I will help you understand the concepts of rational number according to class 8. First topic is number. Natural numbers. The sets of numbers 1, 2, 3, 4 infinity are called natural numbers. मतलब कि इसका होगा सेट्स ऑफ नंबर, कोई नंबर्स का सेट्स जो कि 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर. एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट अलाउड इन नेचुरल नंबर. अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, decimal number not allowed to natural number means 0.2, 1.6 not natural number. Only counting number are natural number, जैसे 1, 2, 3, 4. Get some examples according to our daily life experiment. A boy have many toffees. Other friend told, how many toffees you have? So the boy countings start 1, 2, 3, 4, 5. Then end. That's counting the boy numbers 1, 2, 3, 4, 5, and that number is natural number. Now get more points. Additions and multiplications are closure, commutative and associative for natural. Means first, closure properties. This means that when you add or multiply two natural numbers, the result is also a natural numbers. It means जब आप दो नंबर को जोड़ते हैं या उसे गुना करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर होगा. अगर आप नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तब वो उसका नंबर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा. दैट्स क्लियर. नाउ गेट फॉरवर्ड. एडिशंस. a plus b equal to n. n means a is according to any numbers, b is according to any number, and both numbers put added, then resultant is always n. n means natural number for all. Example, 2 plus 3 equal to 5. 2 is natural number, 3 is natural number, result is always natural number. Which is still a natural number. Clear? B. Multiplications. A into b equal to n. A is natural number, b is natural number, result is also a natural number for all. Examples, 4 into 12 equal to 48. 4 is a natural number, 12 is a natural number, result is always a natural number, which is still a natural number. Here we start commutative property. This means that changing the order of numbers does not change the result. इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो उसका रिजल्ट चेंज नहीं होता. इन एडिशंस, a plus b equal to b plus a. Left hand side we getted some a plus b, right hand side we getted some b plus a. Only change the order of number, not change the number. The result is always same. Example, 3 plus 5 equal to 5 plus 3 equal to 8. Means both results getting 8. Means left hand side 3 plus 5
equal to right hand side 5 plus 3. Only change the place of number, so result is always same. In multiplications, a into b equal to b into a. Here b also change the place of number, so result is always same. Yet example 24 into 6 equal to 6 into 24. Both getting results same, 144. Clear? Associative properties. This means that the way numbers are grouped does not change the result. It means जब हम किसी नंबर को ग्रुप में लेके जाते हैं तो उसका रिजल्ट्स भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा. जैसे कि एडिशंस में a प्लस b इन वन ग्रुप प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c इन वन ग्रुप, बोथ रिजल्ट्स आर सेम. बिकॉज ऐसा इसलिए हो रहा है, एग्जाम्पल 2 प्लस 3 इन वन ग्रुप प्लस 4 इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4 in one group. Only change the group. Here is only change the group, but numbers are left hand side and right hand side. Both are same. So the result is both getting same. Okay. In multiplications, a into b in one group into c equal to a into b into c in one group, both get results same, because here also have same number written, right hand side and left hand side, but grouped both are different positions. Getting example 2 into 3 in one group into 4 equal to 2 into 3 into 4 in one group. Here is also a group, left hand side first order and second is second order. So here is result is always same and result is always a, both result is natural number. Here we study second points of number, whole number. Whole number denoted by W. Here definitions is the sets of natural number with zero is called sets of whole number. जो नेचुरल नंबर्स के सेट्स में अगर हम जीरो को मिला देते हैं उस सेट्स को क्या चीज़ कहेंगे, होल नंबर. जैसे नेचुरल नंबर हम लोग क्या पढ़े थे, 1 2 3 4, है ना. इसी के फ्रंट में यानी आगे में जीरो को मिला देंगे, डैट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड होल नंबर, जो कि इन्फिनिटी तक जाता हो. एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस आर क्लोज्योर कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव फॉर होल नंबर. इस टॉपिक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. फ़र्क कितना है, यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े थे, अब यहाँ पे क्या आ गया, होल नंबर. समझे, सेम टॉपिक है. Here we start third topic of numbers, that integers. Integer denoted by I or Z. The sets of positive and negative number including zero without decimal numbers is called integers. ऐसा नंबर जिसका सेट्स में पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो और साथ में क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि ध्यान देने वाली बात है, जिसमें इंटीजर्स में डेसिमल नंबर नहीं होते हैं. डेसिमल नंबर मीन्स 0.2, ये नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे. क्लियर, ओके. इंटीजर्स जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो कि डिनोट करते हैं किससे, जेड या फिर आई से. कोई अगर कोई बोलते हैं इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं तो भी सही है, अगर कोई बोलते हैं आई से डिनोट करते हैं तो वो भी सही है. समझे. अब इसका एग्जांपल लेते हैं. इन्फिनिटी
है ना, माइनस इन्फिनिटी से जो स्टार्ट होता हो, इन्फिनिटी जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता हो और साथ ही कहाँ से जाता हो, -2 -1, साथ में ज़ीरो भी आए, फिर पॉजिटिव 1 2 3 एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर। हेयर ऑल्सो ए पॉइंट, additions and multiplications are closure competitive and associative for integers। इस पॉइंट को हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर, एंड उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, होल नंबर। बट जो इसका प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ाए हैं वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी क्या होगा, इस्तेमाल होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नंबर के चौथे पॉइंट्स के बारे में, जो कि है क्या जी, इवन नंबर, है ना। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं तुरंत टॉपिक नंबर 3 में, विच आर डिजिबल बाय 2, है ना। ऑल इंटीजर्स विच आर डिजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, है ना। इसका मतलब कोई भी इंटीजर, चाहे वो -2 हो, -6 हो, 8 हो, ये सब नंबर क्या होंगे, अगर ये डिजिबल होते हैं, है ना, बाई 2 से, है ना, ये 2 से अगर डिवाइड हो जाते हैं, ये सारे नंबर क्या होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर। क्लियर। Here even number is denoted by 2n where n is integer। even number जो होते हैं डिनोटेड होते हैं 2n से, जहाँ पर n जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। गेट एग्जाम्पल, 2n, तो 2 इंटू -7 इज इंटीजर, सो -14 and -14 इज इवन नंबर। क्लियर। Here we start fifth topic of numbers, odd numbers। All integers which are not divisible by 2 are called odd number। वो सारे integers जो 2 से नहीं डिजिबल होते हैं उसे क्या चीज़ कहेंगे, odd number। odd number जो होते हैं वो डिनोटेड होते हैं किससे, 2n+1 where n is इंटीजर। हम लोग इसके पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे, इवन नंबर, जिसका डिनोटेशन क्या था, 2n, तो उसी में हम लोग +1 कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ऑड नंबर। क्लियर। 2 इंटू 6 + 1 इक्वल टू क्या आता है, 13। अब ये 13 क्या है, ऑड नंबर है। क्लियर। एग्जाम्पल्स में क्या लेंगे, ऑड नंबर को डिनोट करते हैं ओ से, तो -5 -3 -1 1 3, ये इन्फिनिटी तक जाता है ना, उसको क्या चीज़ कहेंगे, ऑड नंबर। ये बात याद रखिएगा, 0 इज़ नॉट ए ऑड नंबर। जो 0 होते हैं वो ऑड नंबर नहीं होते हैं, है ना। 0 क्या होते हैं, तो इवन नंबर होते हैं। 0 क्या होते हैं, इवन नंबर। 0 क्या होते हैं, इवन नंबर। या फिर जिस नंबर के लास्ट में 0 आएंगे वो भी क्या होंगे, तो इवन नंबर होंगे। क्लियर। Here start 6 topics of number, prime number। All natural numbers that have one or itself only as their factor are called prime numbers। जितने भी नेचुरल नंबर होंगे जिसका क्या होंगे, 1 एंड वो इट्सेल्फ, मतलब कि वो खुद से कटे और 1 से कटे, है ना, उसको क्या चीज़ कहेंगे, तो प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2, है ना। 2 किससे कटता है, तो 2 के टेबल से कटेगा और 1 के टेबल से कटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। क्लियर। अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं,
और 31। क्या लेते हैं? 31 जो डिजिबल होंगे किससे? 1 से और 31 से, है ना। इसका 2 ही फैक्टर है। प्राइम नंबर क्या चीज़ कहलाएगा? ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके अंदर क्या होता हो? एक 1 से डिजिबल होता हो और एक 31 से, मतलब एक 1 का फैक्टर हो, एक खुद का फैक्टर हो इटसेल्फ। समझे? प्राइम नंबर को डिनोट करते हैं P से। सबसे यहाँ पे 2, 3, 4, है ना, ये सब नहीं बोलना है। अगर ऐसे बोलेंगे तो आपका प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल में क्या लेना है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, जिसका फैक्टर्स क्या हो? एक 1 का हो फैक्टर और एक खुद का हो। समझे? इसका नोट करने वाली बात क्या है? द 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर एंड इट्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझे? जो 2 है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है ना। और ये 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है ना। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है? तो इम्पोर्टेंस है। सेकेंड पॉइंट क्या है? 3 इज ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। जो 3 वो क्या है? ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। इसमें लार्जेस्ट नहीं पूछा जाता है। इसमें ऐसे पूछ सकते हैं कि 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। इसमें क्या पूछ सकते हैं? सेकंड डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या पूछ सकते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना। तो इसका क्या कहलाएगा? 11। क्या कहलाएगा? 11। इसी में कोई पूछ देता है 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे करते करते मतलब पूछ सकते। हेयर गेटिंग 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 97, है ना। ऐसे ही पूछ सकते हैं, चाहे स्मॉलेस्ट में पूछें, लार्जेस्ट में पूछें, है ना। और सबसे स्मॉलेस्ट में क्या होते हैं? ऑड में तो 3 होते हैं, इवन में क्या होते हैं? तो 2 होते हैं, है ना। पर ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिट नंबर। All natural numbers which are not prime called composite number। मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो कि प्राइम नहीं हैं वो क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। क्लियर? जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड इन्फिनिटी तक जा सकते हैं इसमें भी। समझे? इसमें नोट करने वाली बातें क्या है? 1 इज नाइदर और नॉर कंपोजिट नंबर। जो 1 होते हैं वह ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं और ना ही प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर? 4 इज इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। जो 4 होते हैं वो इवन स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होते हैं, या फिर अगर नंबर में सिर्फ बात बोले नॉट इवन नॉट ऑड तो यहाँ पे 4 ही सिर्फ बोल सकते हैं। अगर इवन में बोलेंगे तो 4 कंपोजिट नंबर होंगे स्मॉलेस्ट इवन में, अगर ऑड में बोलेंगे तो 9 होंगे। क्लियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज को प्राइम नंबर। इफ द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर of the given numbers is 1, then they are known as co-prime numbers। Means if the HCF मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होंगे किसी नंबर्स का, है ना, उसका या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होंगे किसी नंबर का, अगर उस दोनों का अगर हम बात, दोनों सेम ही चीज़ है, चाहे ग्रेटेस्ट फैक्टर बोलें या फिर हाईएस्ट फैक्टर बोलें, बोथ सेम। उसमें जो 1 होंगे क्या होंगे? कॉमन फैक्टर हाईएस्ट में, उसी को क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे उसका को प्राइम नंबर। समझे? जैसे कि हम किसी एक नंबर के बारे में यहाँ पे नहीं बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया जा रहा है 2 नंबर के बीच में। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल में लिए हैं 8 और 5, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 8।
अब 8 का फैक्टर निकालते हैं, तो फैक्टर कैसे निकलता है, तो ऐसे, है ना। तो 2 से 4 टाइम में, यहाँ भी 2 से 2 टाइम में, अभी और लगेगा, यहाँ लगेगा 2 से 1 टाइम में। अब यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर 5, है ना। तो 5 का अगर फैक्टर निकालते तो क्या आएगा, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आएगी, कितने बार में, 1 टाइम में। अब इसका लिख देते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। इसका कॉमन फैक्टर क्या है, तो इस 1 इधर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, बाकी कोई कॉमन मिल रहा है नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहला जाएगा आपका को प्राइम, है ना। तो 8 and 5 आर को प्राइम। क्या कहलाएगा, को प्राइम। समझे कैसे पता चलता है को प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट होगा क्या होगा, सिर्फ 1 हो, उसके अलावा कोई नहीं, वो क्या कहलाएंगे, को प्राइम। अब हम लोग को प्राइम को और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि रिलेटिवली और मैन्युअली प्राइम, है ना। एग्जाम्पल्स में 8 and 5 जो कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो क्या है, को प्राइम है। और दूसरा क्या है 14 and 25, है ना। इसका भी ऐसे करके आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाली बातें क्या हैं, द एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। मतलब कोई भी कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होते हैं, लगातार। जैसे आपके मन में कोई नंबर है, बोलिए, अगर आपको मन में है कोई चीज़ सोचिए, बोल तो नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं, सोचिए मन में। जैसे कि हम लेते हैं 3 और 4, ये को प्राइम है कि नहीं, देखिए दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर है ना। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, 3 का फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा, 3 के टेबल में 1 टाइम में, और 4 का फैक्टर निकालेंगे क्या आएगा, 2 का टेबल में 2 टाइम में, और 2 का टेबल में 1 टाइम में। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1, 3 का फैक्टर, इधर 1 कॉमन में आ रहा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका भी हाईएस्ट कॉमन क्या है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, 3 and 4 को प्राइम। क्या कहलाएगा, को प्राइम। समझे, को प्राइम जो कॉन्सिक्यूटिव होंगे वो तो होंगे, हमेशा ही होंगे, याद रखिएगा। 2 नंबर अगर कोई कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार है, तो वो क्या कहलाएंगे, हमेशा को प्राइम होंगे। अदरवाइज़ आपको अगर चेक करना होगा तो इस मेथड से आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग ऊपर वही पढ़ रहे थे 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। अब इसी को डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्यूटिव नंबर मीन्स, है ना, क्या होता है, नंबर्स दैट फॉलो ईच अदर इन ऑर्डर विदाउट एनी गैप। नंबर्स जो होते हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं बिना किसी नंबर के गैप में, तो उसी को क्या चीज़ कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जैसे कि 1 और 2 बीच में कोई गैप है, नहीं है। काउंटिंग नंबर के गैप, आप लोग उसको बोलेंगे कि 1.2 भी हो सकता है, बीच में तो भी होता है नंबर, पर यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं, काउंटिंग नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो 7, 8, 99, 100, क्लियर। Here start new topics, real numbers. Numbers which can represent actual physical quantities in a meaning way are known as real number. जो नंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, रियल नंबर, है ना। इसको हम लोग एक डिफिनेशन से और समझ सकते हैं। A real number is any number that can be found on the number line, है ना। मतलब कि रियल नंबर जो होंगे, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे फाउंड कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, रियल नंबर, है ना। जैसे कि इसमें हम लोग सब चीज़ को फाउंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, है ना। तो ये सारा चीज़ क्या होंगे, रियल नंबर हो सकते हैं, है ना। हो सकते नहीं, होंगे ही, ये बात याद रखिएगा। रियल नंबर जो होंगे नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। उनका ओरिजिन जो होते हैं वो हमेशा 0 से होंगे। जो रियल नंबर का जो ओरिजिन होता है वो हमेशा कहाँ से होंगे, 0 से, है ना। तो ओरिजिन कहाँ होंगे, तो नंबर लाइन पे। जैसे कि यहाँ पे आगे पढ़ते हैं,
दिस कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, है ना, मतलब वो जो रियल नंबर होते हैं वो कहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन विथ एब्सोल्युटली डिफाइंड ज़ीरो, है ना, वो क्या होंगे, डिफाइन होंगे कहाँ से, जीरो से, जो उसका ओरिजिन होगा, है ना। जैसे कि हम लोग किसी नंबर को ले लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं, कोई नंबर 2 है, इसको हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं ये 2 रियल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ से एक लंबा मतलब एक लाइन खींचेंगे, पहले 0 ले लेते हैं, है ना, क्योंकि 0 से ओरिजिन होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2, यहाँ लिख देते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, यहाँ से जाएगा और यहाँ तक जाएगा, है ना। तो इससे हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, ये हो जाएगा 2, ये क्या कहलाएगा, रियल नंबर, है ना। ये नंबर लाइन पे आ गया ना, तो इसको क्या चीज़ कहेंगे, रियल नंबर। क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है ना। द रियल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो याद रखिएगा जो नंबर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे। जैसे 2/6, और जो इसको मान लेते हैं p है, तो इसको मान लीजिए q। p हमेशा क्या होंगे, तो इंटीजर्स होंगे i, और q हमेशा क्या होंगे, तो वो नॉन ज़ीरो नंबर होंगे। नॉन ज़ीरो नंबर मतलब क्या चीज़, q नॉट इक्वल टू 0, वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में 5/7 -3/8 11/1। अब यहाँ बोल रहे हैं 0, अब तो बोले 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर हम लोग 0 को फ्रैक्शंस में लिखते हैं तो 1 लिखते हैं नीचे में। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। ये नीचे आ गया, ये हो गया q। अब q यहाँ पे क्या चीज़ है, 1 ना है, नॉन ज़ीरो नंबर है ना। तो यहाँ पे 0 i है, i मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जो नंबर नेगेटिव से स्टार्ट होते हुए पॉजिटिव तक जाए और साथ में क्या हो, 0 भी हो, है ना। तो उसी को हम लोग क्या चीज़ कहेंगे, इंटीजर, है ना। तो ये 0 क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर, याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और क्या है पढ़ने वाली चीज़, नोट करते हैं, है ना, नोट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। अगर हम लोग बात करें, आप लोग हंसेंगे भी हल्का फुल्का कि जब हम लोग इंटीजर का बात कर ही दिए तो हम ये क्यों पढ़ें, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर में तो वो सारा चीज़ आ जाते हैं। पर इस सब पॉइंट्स MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे लिखा रहेगा इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, तो आप बोलेंगे हम तो पढ़े थे ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी आ गया, होल नंबर भी आ गया, ये कैसे। तो ये ऑल होते हैं, है ना। हम लोग अगर इंटीजर बोलते हैं तो उसके अंदर भी नेचुरल नंबर का पार्ट होता है। अगर हम लोग इंटीजर बोलते हैं उसमें होल नंबर का भी पार्ट होता है ना। इंटीजर्स में क्या होते हैं, तो सारे नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं यस, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रेशनल नंबर। क्लियर, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। थोड़ा एक चीज़ और पढ़ने का है, क्या चीज़, फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शंस में होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस मतलब क्या होते हैं, जो कि हमेशा बदल बदल के नंबर आ सकते हैं, जैसे कि 0.23, है ना, नंबर बाद में चेंज हो जाए। जैसे 0.5 -2.6, जैसे कि लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल में यहाँ पे लिखते हैं 64.57, है ना। ये कौन सा नंबर होंगे, तो ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे बोलेंगे फ्रैक्शन लिखे, यहाँ पे डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम फ्रैक्शंस में भी तो चेंज कर सकते हैं। 64, है ना, 0.57 फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे तो 1/100, है ना। क्या हो जाएंगे, 64 पॉइंट हट जाएगा तो 57/100। क्लियर।
और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होंगे, तो जैसे 0.6 ऊपर में क्या होंगे, बार, इसको क्या चीज़ कहते हैं, तो बार कहते हैं, याद रखिएगा। 0.26 बार माइनस 1.6 बार, है ना। तो इसको कैसे लिखते हैं बार वाले नंबर को, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 बार, इसका मतलब क्या होते हैं, 0.6666 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये इन्फिनिटी तक जा सकता है नंबर। कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। इसी को हम, अगर कोई नंबर बार बार एक ही नंबर है तो उसके ऊपर क्या, इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, इस प्रकार से लिख देते हैं, समझे। इसीलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कि पॉइंट के बाद नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना, सेम नंबर आ रहा है बार बार, इसलिए इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, समझे। ये भी क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर के यहाँ पे बहुत क्लियर है, आसान टॉपिक है। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे और टॉपिक क्या होंगे, आसान हो जाएंगे समझने में।